Good morning, sir. Good morning. We'll just wait for 1 minute. Urvashi, please switch on your video. Okay, today we will start a new topic, probability. Okay, we'll just wait for a few more people to join. Anjali, switch on your video. Yeah, good. It's off again. Yeah, okay, good. We'll just wait for a couple of more minutes. Okay, it's time, so we will start. We can't wait and waste time, right? So we will start. Okay. So we are going to start a new topic, probability today. Okay. So you have done probability in previous classes. From ninth onwards, you had been doing probability in some very basic form, right? So we will add to what you have already learned. Okay. So to understand probability, we will recall some of the principles that you have already learned. Okay. So those concepts which you already know, we will just revise those ones and then we will start with the new concepts. Okay. So to understand probability, the first thing that we should know is a random event or a random experiment. Okay. So let me choose. Okay, a random experiment. So sometimes it is also called a trial. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक वो एक्सपेरिमेंट है जिसका कि रिजल्ट हमें ऑलरेडी नोन नहीं है, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन. Okay, tossing a coin, we do not know if the head will turn up or the tail will turn up. We know that both one of the two can happen, but we do not know which exactly will happen, right? So such an experiment is called a random experiment or simply a trial. Okay, so usually the word trial is used. Okay, what is a possible outcome, right? So for example, tossing a coin can result into one of the two results, either a head or a tail. So these are called the outcomes of the experiment.
Okay. Now, if we put all of the outcomes into one set, okay, that universal set of all the outcomes is called the sample space. ओके तो ये सैंपल स्पेस जो है नाम में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम में तो वर्ड क्या आ रहा है सैंपल, लेकिन ये सैंपल नहीं है, ये जो है सैंपल स्पेस इज एक्चुअली द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक है, तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं जो सबसे सिंपल है, टॉसिंग अ कॉइन, जिसमें हेड आ सकता है टेल आ सकता है, तो हमारा सैंपल स्पेस इज अ सेट, तो हमें सेट की फॉर्म में लिखना है एच कॉमा टी। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, इसको हम एस से डोनेट करते हैं यूजुअली, ओके, इन दिस बुक। लेकिन अगर आप और बुक्स पढ़ेंगे, जैसे रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, तो उनमें ये अलग अलग नाम से डिनोटेड हो सकता है सैंपल स्पेस। ठीक है, यू से भी डिनोटेड हो सकता है, साई से भी डिनोटेड हो सकता है। तो अगर आप और बहुत सारे पुराने रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो तब आपको ये भी सिंबल्स पता होने चाहिए, बट इस बुक में हम एस से डिनोट करेंगे। अब एक इवेंट क्या होता है, ठीक है, event is something that we are looking for will happen or will not happen। okay, ऐसी चीज को हम इवेंट बोलते हैं, ये हम शुरू से डिफाइन करते आए हैं। लेकिन अब जब हम सेट की भाषा में बात कर रहे हैं तब इवेंट क्या है? इवेंट कोई भी एक सबसेट इंक्लूडिंग 5, राइट, एनी सबसेट of the sample space is called the event। okay, so for example, in this what are the possible events? okay, the power set of this are all the possible events. For example, one event is, okay, this. What is the other event? This is one event, this is one event, and this is one. okay, these are all events. Any subset of the sample space is called the event। okay, what is a simple event? okay, a simple event is a singleton set, matlab which has only one outcome। तो इसमें सिंपल इवेंट्स कौन कौन से हैं? एच और टी जो है ये सिंपल इवेंट्स हैं। फाइव जो है उसमें एक भी इवेंट नहीं, एक भी आउटकम नहीं है, वो भी सिंपल इवेंट नहीं है, और एच कॉमा टी इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल। compound event is a set of more than one items in the event set। ठीक है, जैसे this is a compound event। okay, now the fact that we are using initially तो event हमारे लिए क्या था, कोई एक outcome, लेकिन आज की अब हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 11-12 में, इसमें event क्या है? event एक set। ओके, अगर सेट है तो उसके ऊपर एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मिनट। ओके, अगर वो एक सेट है तो हम उसके ऊपर सेट अलजेब्रा कर सकते हैं। ओके, सो सेट अलजेब्रा हम किस तरह करेंगे? जो हमारे सेट के टर्म्स हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उन्हीं को यूज करेंगे। जैसे इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक इवेंट ए है
तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ओके उसका अभय चौधरी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, देयर इज नॉइस कमिंग, म्यूट योरसेल्फ। अभय चौधरी, अभय आपका वीडियो भी बंद है, अपना वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट करिए अपने। So we are talking about the events. Okay, event is nothing but a set. So अगर एक event A है तो उसका complementary event क्या होगा? Anything which is not the event A. Okay, so which is a not A or a complement of set A, which can also be written as the universal set, which is the sample space minus the event set. Okay, so this is the set difference of operation. Okay, this is a set difference operation, here the minus sign. अगर there are two events, A event है और B event है, अगर हम ये बोलते हैं कि either A और B, okay, तो ये और ऑपरेटर जो है, this in the set will become a union operator. ठीक है, और अगर हम एंड बोलेंगे, इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ शुड हैपन एट द सेम टाइम, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो दैट विल ट्रांसलेट टू इंटरसेक्शन इन द सेट लैंग्वेज। ओके, ये सब चीजें क्लास 11th में आपने ऑलरेडी की हुई हैं, so that should, I am not explaining a lot. Okay, if event A and event B are exclusive, ओके इसका क्या मतलब होता है कि इवेंट ए और इवेंट बी एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये है कि इवेंट ए में कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो इवेंट बी में हो एंड वाइस वर्सा। ओके, यानी कि उनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। ओके, when are a set of events, okay, हमारे पास इवेंट 1 2 3 ऐसे हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं और हम उन सबको कलेक्टिवली बोल रहे हैं कि एग्जॉस्टिव है वो इवेंट्स। ओके, सो दिस वर्ड एग्जॉस्टिव, इट मींस दैट इन सब का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव जहां पे इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है और एग्जॉस्टिव जहां पे कि यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस। ठीक है, नाउ इन सब चीजों के बेसिस पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स वी हैड बीन यूजिंग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन event divided by number of possible outcomes, right? तो जितने भी events favorable to E हैं वो ऊपर लिखा और जितने भी टोटल हैं उसको नीचे लिखा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, राइट? तो इसको हम सेट में भी लिख सकते हैं, सेट में लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, वो क्या है? द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट E, और number of all events possible is the cardinality of set S। तो ये हमारी हो गई क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इन सेट लैंग्वेज। ओके, लेकिन ये यूज करने के लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन,
वो कंडीशन मीट होनी ही होनी चाहिए। ओके, एंड दैट कंडीशन इज कि ऑल द आउटकम्स जिससे हमने अपना सेट एस बनाया है, वो सारे आउटकम्स इक्वली प्रोबेबल, या फिर दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं इक्वली लाइकली होने चाहिए। यानी उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तभी ये वाला जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है काम करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है, ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इक्वली प्रोबेबल या इक्वली लाइकली आउटकम्स को लेकर डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन ऑन अ रोल ऑफ अ डाई। ठीक है, एक डाई है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें वी आर लुकिंग एट वेदर वी विल गेट अ वन और नॉट। दिस इज आवर डाई। जब इसको रोल किया तो क्या ऊपर वन आएगा? तो इसमें हम आर्ग्यू कैसे करते हैं? हम ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि देर ऑल द phases are exactly the same size, the material is uniformly dense, so there is no reason that will favor one face over another. इसका मतलब ये सारे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 4 आए सब इक्वली लाइकली हैं। अगर सब इक्वली लाइकली हैं तो 1 आना, ये इवेंट में केवल एक ही आउटकम है 1 आना, और सैंपल स्पेस में 6 आउटकम्स हैं, तो इसका मतलब 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन रोल ऑफ अ डाइस। तो अब इसमें सेट ई लिखते हैं। सेट ई क्या है? वी वांट एन इवन नंबर, यानी 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, हमारा सेट ई। सेट एस तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, right? So our probability will be given by cardinality of set E by cardinality of set S, which is 3/6 is equal to half. ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन हाउ डू दे वर्क बेस्ड ऑन आवर न्यू लैंग्वेज, हमें वो समझना। ठीक है, नाउ ये सब हम कर चुके हैं, क्लास 11th में बहुत डिटेल में किया है हमने। ठीक है, तो अब जो है हम वी कम टू व्हाट इज न्यू इन क्लास 12th। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर हम कोई, सोनाली कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा बेटा? योर कैमरा इज ऑफ। ओके, ठीक है, सो let's look at these very simple examples and try to understand how revealing of information can change the probability. ठीक है, तो जैसे इसको देखते हैं, what is the probability that it will rain on a certain day, right? You are not given any other information which day etc. So ये हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये हम इस तरह से निकालेंगे कि मान के चलो एक साल में जिसमें 365 दिन होते हैं, केवल 100 दिन बारिश होती है इन जनरल। ये हमने एम्पिरिकली डेटा से निकाला। ठीक है, तो अगर कोई हमसे ये केवल पहला सवाल पूछे और कहे कि किसी भी एक सर्टेन रैंडम डे पर बारिश होने के क्या चांसेस हैं, तो क्या जवाब देंगे हम? फर्स्ट केस में हम कहेंगे 100/365। बस यही है, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब देखिए कि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन अ सर्टेन डे एंड इट इज नोन दैट द डे इज 15th जुलाई? क्या हमारा ये आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैं डेट बता देता? राइट, द आंसर कैन चेंज अगर डेट बताया। क्यों? क्योंकि दिस इज द मॉनसून सीजन।
right? Definitely it's more likely to rain than 100 upon 365 on this day. Similarly, if I also tell you that the sky is cloudy today, okay, or is cloudy on the 15th of July, right? Then will it change the answer? Yes, it will further increase the probability of it raining today, right? So the thing is, as and when we get to know something, it could increase or decrease the probability of an event. Okay, so but does knowing anything increase the probability of an event? For example, somebody says that a very important VIP is visiting the town today. Okay, then will it change your answer whether it will rain today or not? No, this event of somebody important VIP visiting has no bearing on the rains. It does not affect the rains at all. Okay, so the event of rain happening is independent of the VIP coming. So this will not change the answer. No, it will not change the answer. Okay. So we understand that some type of information अगर reveal की जाती है तो probability किसी भी event की change हो सकती है. जरूरी नहीं है change हो, लेकिन change हो सकती है. ठीक है. तो अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? मैथमेटिकली हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि मान लीजिए हम प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हैं इवेंट ई की, ठीक है? तो हम उसको कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ई. दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. लेकिन अगर what is the probability of event E when I know event F has already occurred? ठीक है. अब मुझे पता चला कि इवेंट एफ हो चुका है पहले से, तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई क्या होगी? इसको मैथमेटिकली, इस सेंटेंस को हम मैथमेटिकली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ. ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की है जब हमें पता है कि एफ हो चुका है. Okay, so this is the format of writing, and this is also known as the conditional probability of event given event F has occurred. Okay, so conditional probability इसको बोलते हैं, right? So in this chapter, that is actually the most important thing that we are going to learn, right? So the entire chapter essentially or I would say significant part of this chapter is about conditional probabilities. Okay, then we also learn about the random variable concept, but उस वाले part में से काफी सारा syllabus reduce कर दिया गया है इस बार. Okay, so conditional probability will occupy like 80% of our effort. What is the probability of a number shown up on the die being 1 if it is already known that the die has shown an odd number? Okay, so what is the question? क्वेश्चन ये है कि मैंने एक डाई रोल की, ठीक है, और उसको अपने हाथ से छुपाया हुआ है रोल करने के बाद. अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि इसमें 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी.
ठीक है, एक डाई रोल करके मैंने उसको अपने हाथों से छुपाया हुआ है और पूछा है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। गोपाल, व्हाट विल बी द आंसर? सर 1/6। 1/6, राइट। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि उसमें देखा, तुम्हें नहीं देखने दिया, अंदर देखा और मैंने कहा कि चलो आई विल टेल यू सम मोर थिंग्स, ओके, कि एक्चुअली एक ऑड नंबर आया है, राइट। अब बताओ 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब तुम किस तरह से सोचोगे कि देखो 1 आने की ये तो पता नहीं है 1 आया नहीं आया, लेकिन पहले मेरे पास क्या क्या प्रोबेब ऑप्शंस थे। 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता था। अब मैंने आपको बता दिया कि ये और ये तो आया ही नहीं। अब चॉइसेस केवल ये हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, and all of these are equally likely even now. There is nothing favoring 1/3 etc, right? So इसका मतलब क्या है कि probability of 1 coming up is actually 1/3 and not 1/6, right? तो जब मैंने ये बता दिया कि ऑड नंबर आया है और तब दोबारा प्रोबेबिलिटी पूछी, तो आप बताएंगे कि 1/3 है, राइट। इसका एक एक्सट्रीम केस देखते हैं कि मैंने देखा उसमें और आपको बता दिया कि 1 ही आया है, तब क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की? गोपाल, मैंने देख के आपको बता दिया कि 1 आया है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की? सर पता नहीं। देखिए, मैंने बता दिया 1 आया है, राइट, और ये पूछ रहा हूं 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1 आ ही गया ना। अब तो ये किस तरह का इवेंट बन गया? श्योर इवेंट है, श्योर। है ना। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मैंने बता दिया 1 आया है तो 1 आया है, राइट, खत्म बात। उसी तरह से अगर मान लीजिए, मैंने कई तरह से हम इसको देख सकते हैं, मैंने कहा कि 1 या 2 में से एक आया है कोई, अब बताइए 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/2। 1/2 है अब, राइट, क्योंकि फाइनली जो चीज इंफॉर्मेशन मैंने रिवील कर दी, जो चीज नहीं आ रही है वो तो नहीं आ रही है, राइट, उसको तो हम हटा ही सकते हैं, देखा जाए अपने सैंपल स्पेस में से, राइट। तो इस तरीके से जो है, जब हम इंफॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब इसको जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को देखते हैं। ये तो अभी हमने इंट्यूटिव मेथड देखा है, अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे करते हैं। तो अभी भी हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग E, right, when F is known to have happened, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट E इंटरसेक्शन विद F डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ F, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और अब हमने क्या किया, इसमें हमने दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कार्डिनैलिटी ऑफ S से डिवाइड कर दिया। तो ये वाली टर्म अब बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और नीचे वाली बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ओके। सो हमारा जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E
is equal to probability of E intersection F डिवाइडेड बाय जो इवेंट अकर हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बस याद रखना है और इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझ लीजिए। इंट्यूटिवली क्या है कि जब हमें एफ पता चल गया कि एफ हो चुका है, तो एक तरीके से अगर हम एक सेट में देखें, ठीक है, ये हमारा सेट में ये ई था, ठीक है, और ये है हमारा एफ, और ये ऑब्वियसली बाहर जो रेक्टेंगल है ये एस है। ठीक है, अब हमें पता चला कि एफ हो चुका है, राइट। अगर एफ हो चुका है तो ये सब जो चीजें हैं इसके बाहर, ये तो मीनिंगलेस हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। केवल क्या हो सकता है जो इस एफ के अंदर है। एक तरह से, ऑल्दो ये आप लिखने में नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि जो एफ है एक तरह से ये आपका नया सैंपल स्पेस बन गया, क्योंकि मैंने बता दिया है कि केवल एफ ही हुआ है, राइट। तो उसके बाहर की चीजें नहीं हो सकती, यानी अब यही बचा है जो कुछ बचा है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई, राइट। अब इवेंट ई मैंने पूछा कि इवेंट ई हुआ अगर एफ हो चुका है, तो ये वाला पार्ट इवेंट ई का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एफ में है ही नहीं। तो केवल और केवल ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो ओवरलैपिंग पार्ट है, केवल यही ई का हो सकता है। और ये पार्ट क्या है? ये है ई इंटरसेक्शन। So now we are only looking for the probability of E intersection F out of the entire probability of F, right? We are looking for this by this ratio. That is exactly what our formula is. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप इंट्यूटिवली भी समझना जरूरी है ताकि भूले नहीं, वरना क्वेश्चंस करते वक्त तो जो है बस फॉर्मूला डायरेक्टली काम आ जाए। ओके, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस गिवन एफ इज 1, राइट। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सैंपल स्पेस में से ही होगा। कोई भी चीज होगी वो सैंपल स्पेस में से ही होगी, ये तो मस्ट है, वो तो डेफिनेशन है सैंपल स्पेस का, तो ये तो क्लियर ही है। अब दूसरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट एफ गिवन दैट इवन एफ हैज अकर्ड इज ऑब्वियसली 1, क्योंकि जब मैंने कहा कि इवेंट एफ हो ही गया है तो इवेंट एफ की होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है, वो हो चुका है, राइट। तो ये एक क्लियर रिलेशन है, लेकिन कई बार एनालिटिकल क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ, ओके, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। ठीक है, ऐसे पढ़ने में बड़ा लंबा सा रिलेशन लगता है, राइट, लेकिन इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है याद रखने को। ठीक है, ये वाला रिलेशन तो आप सबको याद है ही। ये वाला रिलेशन सबको याद है, राइट। Anybody who doesn't remember this relation? ये आपने क्लास 11th में किया है, राइट। सेट थियरी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेट थियरी वाला